So, so today we are going to learn about how to calculate n factor for intramolecular redox. Right. So for intramolecular redox, let us consider one of such example like KClO3 on heating. It forms KCl plus O2. Now, if you look at this example, what is the oxidation number of chlorine here? It is in +5 state. And that of oxygen, it is in -2 state. What is of chlorine over here? It is in -1 state and oxygen is in 0 state. Now just look at this. This -2 to 0, that means it is undergoing oxidation. And then +5 to -1, this is undergoing reduction. तो आपको देखो इधर एक ऑक्सीडेशन में जा रहा है, दूसरा रिडक्शन में जा रहा है, एक ऑक्सीडेशन में जा रहा है, दूसरा रिडक्शन में. ये आपका ऑक्सीडेशन है और ये क्या है? रिडक्शन. सो बोथ आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम सिंगल मॉलिक्यूल. अब एक ही मॉलिक्यूल है, राइट? और वन फॉर्मूला यूनिट इज देयर, बट ऑफ डिफरेंट एटम. लाइक क्लोरीन इज अंडरगोइंग रिडक्शन एंड ऑक्सीजन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. तो इससे क्या समझ आता है कि जब कभी भी डिफरेंट ना हो, लाइक OA एंड RA, if they are not different molecules but both are taking place, oxidation and reduction taking place, so that reaction is termed as intramolecular redox. But be careful, intramolecular redox में atoms तो different होगा. reduction में यहाँ chlorine reduction हो रहा है और यहाँ पे oxygen oxidize हो रहा है, क्योंकि next एक और अभी reaction मैं आपसे discuss करने वाला हूँ. कौन सा? that is disproportionate reaction. that is also very similar to intramolecular. ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि एटम डिफरेंट होने चाहिए. तो अब कैसे करेंगे? वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रिएक्शन इज कि आपका जो लॉस है या गेन है वो कहीं से भी कैलकुलेट करो, इक्वल आएगा. एंड बाय डिफॉल्ट बिकॉज इट इज वन मॉलिक्यूल ना, सो इधर से जितना लॉस होगा इट इज सपोज टू बी दैट अदर एटम विल हैव टू गेन दैट मच. तो एक बार हम चेक करते हैं. तो जैसे आप देखो यहाँ पे क्लोरीन फ्रॉम +5 स्टेट going into chlorine -1 state. So how much electron it has gained? Obviously 6 electron. तभी तो +5 से -1. और एक बार देखते हैं ऑक्सीजन जो वहां पे 3 एटम्स में है, that is in -2 state. ये किधर गया है? आपका O2 में गया. बैलेंस करोगे तो आप 3/2 O2 आएगा इधर. 3 ऑक्सीजन लेफ्ट एंड 3 ऑक्सीजन राइट. राइट, आप चेक करके देखो कितना हुआ. यहाँ पे 0 आया. सो पर सॉरी, oxidation number is 0, change is 2. So per atom it is losing 2. How many such atoms are there? 3. इधर भी 3. तो plus कितना? 2 into 3, 6 इलेक्ट्रॉन. अब आप सोचो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ऑक्सीजन, whereas chlorine is gaining 6 इलेक्ट्रॉन. So that's what I was trying to tell you. So n factor कैसे निकालते हैं इनके लिए? n factor is equal to, very simple, very simple, number of electron lost by any one of the part, right? लूज कौन करता है? इलेक्ट्रॉन. कौन लूज करेगा? ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन you can go from any of this side for the oxidation or reduction. So number of electron transferred from oxidizing part to reducing part per molecule. Lost, number of electron lost or gain.
from either part. Either part, oxidation part or reduction part, कोई एक ही consider करना है. Like n factor for the above case, I will consider from chlorine, and chlorine की वजह से कितना आएगा आप देखो तो +5 है इधर, -1 है इधर, तो कितना का चेंज हुआ? So 5 minus -1, total 6 electron change. So n factor will be 6. आप ऑक्सीजन से निकालो तो पर मॉलिक्यूल निकालना है, ध्यान रहना चाहिए. ये ऑब्वियस सी बात है, पर मॉलिक्यूल, नॉट पर एटम, राइट? तो आप देखो यहाँ पे व्हेन आई एम डिस्कसिंग, ये क्लोरीन से आया और उतना ही सेम आएगा आपका ऑक्सीजन से भी. देखो तो -2 to 0, change is 2, 3 atoms are there, so per molecule it will be 2 into 3, 6. So this is bound to be equal, क्योंकि loss और gain equal होना चाहिए, and it will be equal. So this was how we are calculating the n factor for intramolecular redox. Now I would like to introduce one more important method which is valid for all type of reaction. I mean, all type of redox reaction. Like we have seen how we are calculating in intermolecular redox. Oxidizing part and reducing parts are different. So that's how we are going for that. We were calculating number of electron gained or lost per molecule. That's how we were calculating. Now I will tell you a more general method of calculating n factor, which will be valid for intermolecular, for intramolecular, for disproportionate, for any special reaction, that will be valid. So most general formula, most general method to calculate n factor for any redox reaction. Right? तो क्या है? तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, in a balanced reaction, अगर balanced हो, in a balanced reaction, n factor is equal to simply the number of electron transferred. ध्यान से समझना इसको, number of electron transferred, क्योंकि unless you balance, how will you know how many electron is transferred? So number of electron transferred from oxidation part to reduction part, and whole divided by of the molecule. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो उसके लिए एक रिएक्शन लेता हूं और फिर आपको समझाता हूं कि ये सबसे ज्यादा जनरल मेथड है. जैसे अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूं, बच्चों देखो, from this I can calculate KClO3, I can calculate KCl and I can calculate O2, किसी का भी, क्योंकि आप देखो कि ट्रांसफर कितना हुआ है, 6. किधर से किधर ट्रांसफर हुआ है? ऑक्सीजन इज लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन and chlorine is gaining 6 electron. Rest potassium is unaffected. तो यहाँ पे तो one species on the right and one species on the, one species reduction and one species oxidation. But suppose करो आपके पास unnecessary atoms are also present. Like you may have seen in many cases such reaction where unnecessary species also comes into picture.
जैसे मैं एक रिएक्शन आपके सामने लेके आऊंगा एंड दैट इज दिस वन. Consider this one. I'm just making it bigger. Now just consider this. Tell me, is there any change happening in hydrogen? +1 to +1. Any change happening? No. So here water is a species which is not participating in the redox reaction. So what will be the N factor for this species? Will it be defined or not? Answer is yes, it is also defined for this. Many students have confusion कि जो पार्टिसिपेट ना करे रेडॉक्स रिएक्शन में उसके लिए एन फैक्टर नहीं होता. ऐसा कुछ भी नहीं. एन फैक्टर का सिंपल सा मैंने आपको बताया सबसे जनरल फॉर्म क्या है. एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड या ट्रांसफर्ड. कहां से कहां? OA to RA, oxidation part to reduction part, divided by stoichiometric coefficient. So obviously ये बैलेंस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ. तो अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी आपको यूज करना सिखाता हूँ. तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड. तो आज देखते हैं. ये कॉपर किधर है? +2. इधर कितना है? सॉरी, ऑन द लेफ्ट साइड इट इज 0, ऑन द राइट साइड इट इज इन +2. क्या कॉपर और कहीं पे भी जा रहा है क्या? नहीं. सो how much electron is lost by copper? Per atom it is losing 2 electron, but how many such atoms are there? 3. So that means 3. Total 6 electron it is losing. Now let's look at the gain. अगर ये बैलेंस्ड है तो लॉस और गेन दोनों इक्वल होगा. तो गेन आप देखो यहाँ पे इट इज +5, यहाँ पे चेक करो इट इज +2. सो चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक. पर एटम कितने का चेंज हो रहा है? 3 का चेंज हो रहा है. दैट मींस इट इज गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन. सो क्या 8 मॉलिक्यूल से निकाले क्या? तो 8 × 3 कितना आ गया? 24. इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि बैलेंस्ड ही नहीं. दिस इज नॉट द राइट वे. क्यों? क्योंकि देखो आप 8 HNO3 में 6 आउट ऑफ दीज नाइट्रेट आयन आर गोइंग हियर एज इट इज. यहाँ पे देखो आप +5 है. तो इसका मतलब 6 में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ. 3 × 2 6. देयर इज नो चेंज इन 6. चेंज तो सिर्फ किस में हुआ? 2 में. तो इसलिए अगर कोई स्पीसीज दो पार्ट में जा रहा है तो डोंट लुक एट डायरेक्टली दिस द कोफिशिएंट ऑफ दिस पार्ट फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल लॉस और टोटल गेन. रादर वहां पे चेक करो कि जहां पे एक्चुअल में वो एक ही जगह गया. जैसे NO, चेंज तो यहाँ पे हो रहा है ना NO में ही बस. तो आप इसके कोफिशिएंट को देखो तो 2 यहाँ पे आया. तो पर मॉलिक्यूल कितना, सॉरी पूरे बैलेंस्ड के हिसाब से कितना इसने चेंज किया? सो 1 नाइट्रोजन पर मॉलिक्यूल, सो मल्टीप्लाई बाय 2. टोटल कितना आया बेटा? 6. तो चेंज के लिए सिर्फ यहाँ जा रहा है, तो इसलिए आप 2 से ही कैलकुलेट करो, आप 8 से कैलकुलेट नहीं करोगे. सो इट इज 6. अब आप देखो 6 इधर भी है और 6 इधर भी है, ऑक्सीडेशन में भी और रिडक्शन में भी. ये आपका रिडक्शन था और ऊपर वाला क्या था? ऑक्सीडेशन. ये तो रहना चाहिए. वही मैं बता रहा था कितना इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर किया. ये 6 और इसी को गेन इसने किया. सो आपका जो ऊपर का वैल्यू है n, वो कितना आ गया? 6. अब मुझे n फैक्टर जो भी स्पीसीज बताओ मैं उसका निकाल सकता हूं. कोई भी स्पीसीज आप गेस करो, आई कैन फिगर आउट. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना था बेटा? 6 था. अब बताओ मुझे, मान लो n फैक्टर मुझे किसका निकालना है? ऑफ कॉपर. तो कितना आएगा? तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? 6. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट. कोफिशिएंट कितना है चेक करो तो वहां पे 3 है. यहाँ पे देखो आप 3 है. सो डिवाइड कर दो 3 से. सो व्हाट इज n फैक्टर? 2.
सिमिलरली n फैक्टर ऑफ HNO3 अगर आपको निकालना हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं है तो यू कांट फिगर आउट। देखो 8 है वहां पे, चेंज कितने का हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन का, कोफिशिएंट कितना है 8, so look at this, n factor is 6/8. Similarly my dear, you can figure out the n factor of water also, which I was telling you, n factor of water, तो कितना आएगा, कितना एक्सचेंज हुआ इलेक्ट्रॉन, माइंड माई वर्ड, क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, you need to only know the number of electron transferred. That's what the most important and very very essential part of this reaction, that is 6 changes taking place, और ट्रांसफर 6 का ही है, OA to RA, ये पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं, दैट हैज नथिंग टू डू विद इट, ये बैलेंस्ड होना चाहिए और इसका कोफिशिएंट आपको मालूम होना चाहिए। तो कितना कोफिशिएंट है 4, सो n factor of water is 4. So like that you can calculate the n factor of every single species. जैसे मैं आपसे पूछूं कि कॉपर नाइट्रेट का बताओ, तो 6 divided by 3 कितना आ गया 2. I hope now you would have understood. NO का मैं पूछ लूं तो आप बोलोगे 6 divided by 2, that means 3. So that's how you have to apply. This is the most general form. You can apply this to any one of them. But what is the problem with this? एक ही प्रॉब्लम है, आपको रिएक्शन पहले बैलेंस करना पड़ेगा, जबकि जो मैंने पहले आपको मेथड बताया था वहां पे आपको रिएक्शन बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है। लेकिन वो कहाँ पे वैलिड है, उसमें कुछ लिमिटेशंस है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये दोनों ही अलग अलग मॉलिक्यूल का होना चाहिए, एंड दे शुड गो इनटू वन इन वन स्टेट। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि KMnO4 शुड गो ओनली इनटू MnSO4 और एनी वन स्टेट, 7 से ये 2 में और एक ही मॉलिक्यूल में गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि +2 भी आ गया एंड Mn+4 भी आ गया। ऐसा हो गया तो फिर आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया, ठीक है। सो आपको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर अल्टरनेट अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट। सो अब आपको समझ आ गया कि इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स का कैसे निकालते हैं। आप सिंपली क्या करो, कितना ट्रांसफर हुआ था 6, तो इसका कोफिशिएंट भी 1 ही है, डिवाइडेड बाय 1। इसमें निकालना है, इसका निकालना है तो आपको बैलेंस करके देखना पड़ेगा। हालांकि चूंकि एक ही स्पीसीज आ रहा है तो आपका बैलेंसिंग भी इट इज मच इजियर क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 आएगा। ये O2 का बैलेंसिंग करना इज आल्सो मच इजियर क्योंकि 3/2 है, राइट। अब आप n फैक्टर इसका भी निकालना चाहो तो बैलेंस हो गया तो आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट 3/2, 2 ऊपर आ गया, सो 3 2 जा 6, टोटल कितना आ गया 4। सो इट इज दैट सिंपल, प्रोवाइडेड इफ यू नो हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन, फाइन। सो अब हम थर्ड रिएक्शन के बारे में देखेंगे, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। So how to calculate? Disproportionate reaction. तो पहले तो रिएक्शन क्या होता है, what is that reaction? So my dear, one of the very favorite example is when bromine in the presence of NaOH, when it is heated, it forms NaBr plus NaBrO3 along with water. अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ब्रोमीन यहाँ पे 0 में है और यहाँ ब्रोमीन कितना है -1 में, और इधर ब्रोमीन कितना है +5। Now just look at here, that same bromine is undergoing oxidation also and the same bromine is undergoing reduction also with the same oxidation state. ब्रोमीन 0 में ही था तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसका रिडक्शन भी हो रहा है। अब यहाँ पे n फैक्टर कैसे निकाले, हाउ टू कैलकुलेट? तो पहले मैं एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ, फिर एक बैलेंस करने के बाद, क्योंकि बैलेंसिंग अगर आपको आ गया तो उससे तो बहुत इजी है। शॉर्टकट क्या है, ट्रिक कैसे निकालना है?
राइट, Br2 प्लस Br2 इसको ब्रेक करो और आप उनके स्पीसीज लिखो, Br-1 and BrO3 प्लस 5। सो आप देखो वन पार्ट को ऐसा अज्यूम करो कि क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो चेंज कितने का हो रहा है, आप इसको मन करे तो आप बैलेंस कर लो, नहीं तो जरूरत नहीं है। सो 2, क्योंकि आप Br2 का चेक कर रहे हो, इधर मर्जी है तो आप बैलेंस करो। यहाँ पे आप देखो 0 था और इधर कितना हो रहा है, इसको भी बैलेंस करना हो तो आप देख लो। सो 0 to 5 यानी 2 into 5, टोटल कितना हो गया 10। तो n फैक्टर Br2 का कितना आएगा, हाउ टू कैलकुलेट। सो इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 1/n फैक्टर ऑफ द स्पीसीज विच इज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन is equal to 1/n factor due to oxidation part plus 1/n factor due to reduction part। ये शॉर्टकट है। सो 1/n factor is equal to ऑक्सीडेशन से कितना आ रहा था, आप देखो चेंजिंग हाउ मच 2, क्योंकि पर मॉलिक्यूल देखना है ना, तो 1 atom to 1 atom is 1, but Br2 is having 2 atom in 1 molecule, so 2 आ गया। so 1 into 2 basically plus 1/n factor due to reduction। तो रिडक्शन में आप देखो कितना है, पर एटम चेंज कितने का हुआ, 0 से प्लस 5, लेकिन कितने एटम है Br2 में, 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं। so that means 2 into 5। इसको सॉल्व करो आप, 1/2 प्लस 1/10, इसको सिंप्लीफाई करो तो 10 आ गया मेरा इधर, 5 ऊपर प्लस 1, टोटल कितना आ गया 6। तो टोटल 6/10। तो आपका 1/n फैक्टर ऑफ Br2 इज इक्वल टू 6/10 यानी 3/5। सो n फैक्टर कितना आ गया, n फैक्टर कितना आ गया इसका 5/3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बार n फैक्टर मालूम चल गया तो क्या इक्विवेलेंट वेट नहीं निकल जाएगा क्या, equivalent weight is equal to molar weight of that species divided by n factor। तो यानी molar weight of Br2 आप लिखोगे और उसका n factor 5/3। so 5 divided by 3 यानी 3m/5 आ गया। so that's how we calculate for disproportionate reaction। so next video में मैं आपको बताऊंगा how to calculate for special reactions। स्पेशल रिएक्शंस मींस जैसे ये मैं आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूं, इस टाइप के रिएक्शन। जहां पे आप देखो क्रोमियम सेम टू सेम जा रहा है, +6 to +6 एंड +6 to +3, मोर देन 1 स्पीसीज में गया। और आप यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, सो फ्रॉम -2 टू यहाँ -2 है, यहाँ -2 है और यहाँ पे कितना है 0। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि मैंने आज हिंट दे दिया है कि आप कोई भी जनरल रिएक्शन हो, अगर आपको बैलेंसिंग आती है तो बैलेंस करके, या तो एग्जाम में ऐसे जनरली कॉम्प्लिकेटेड जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनका एग्जामिनेशन में वो कोफिशिएंट दे करके आपको पूछता है। तो आपका मेथड क्या मालूम होना चाहिए, आइडेंटिफाई किसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और एक बार लॉस देख लो, गेन देख लो, उसके हिसाब से बता दो। सो दैट्स ऑल।